आप आइए, इनके साथ रहिए, इनको कंफर्ट दिलवाइए. Let them understand that you're part of that. One thing nobody can take you from being an Indian, your adaptability, your survivability, your basic level of intelligence. Correct. Okay, your street smartness. These are very inherent to us. Asia culture में, especially in these countries, वो आपको मुंह पर कुछ नहीं बोलेंगे, but they will just close the door for you. आप कोई भी culture में जाइए दुनिया में, you have to first learn that culture. Correct. They somehow got my resume, and they had called me that we have a role in Singapore. Would you like to join us? अभी सिंगापुर में हवा चल रही है AI की, मशीन लर्निंग की. अब यहाँ जहाज खरीद रहे हो, सिंगापुर फ्लैग रख रहे हो, आपको टैक्स पूरा 0 है. हेलो फ्रेंड्स, वी आर इन सिंगापुर ओनली. और आज जो हमारे स्पेशल गेस्ट हैं वो लास्ट 13 ईयर से सिंगापुर में रह रहे हैं और इनफैक्ट ICI के सिंगापुर चैप्टर के चेयरमैन भी हैं, प्लस वो एक लॉजिस्टिक MNC कंपनी के एज ए डिप्टी CFO वर्क कर रहे हैं. चलिए उनसे मिलते हैं, डिस्कस करते हैं कि हाउ सिंगापुर इज ट्रीटिंग हिम. हाय निशांत, हाउ आर यू? Very well, thank you. Thank you so much for coming to our podcast. So thank you so much for meeting it in Singapore. So let's talk about about you. So how come you landed in Singapore? In chit chat I came to know about that it is almost 13 years that you are staying in Singapore. Yes, that's true. So how you landed in Singapore? So story is like 13 years back, I had just got married. And I was young that time, and typically like any youngsters in India who's in corporate world, they want to do a stint outside India. Right. So I just got married. So me and my wife thought, okay, let's go for an extended honeymoon. So we landed up here to have honeymoon for 1 year and then go back to India. And then how that 1 year turned into 13 years. And in between we have got 2 kids also. So it's more like a home here now. Great. So means you thought of it kind of an honeymoon, and now it's like your own home. Yeah, correct. There's this, it happened. तो लिखी थी कि आपको सिंगापुर में आपको आना है. Singapore में आना है. And the industry also is totally different. So in India I was working with Diageo, the liquor company. And here I joined a ship management company. So totally different field itself. So how you are finding it? Because you worked in India also. आपने कितने साल काम करा इंडिया में? So if you take my articleship here, 3 years of articleship in Calcutta, 2 years of work in Pune, 5 years in Bombay, so almost close to 10 years corporate life there. And now 13 years. Now 13 years. Total 23. So more or less more than half you have spent in Singapore. Yes. So how is Singapore treating you? Singapore really spoils you. So spoils you in what sense? You get used to the ease of living. So great here. It just spoils you. More than you, the kids who are born, raised up here, for them, it's very difficult to go back to India. And you, in India, you're fighting against 1.5 billion population all the time. Right. Here is 5.5 million. It's like 1/3 of my city from where I come from, Calcutta or Bombay, or even for Delhi for that person. So it's the sheer competitiveness which is there in India. They'll not find here. But then what does it give you? It gives that environment for you to blossom. I keep on hearing kids here are not street smart, or they don't know how to survive. But I always tell them, but the kids here get a platform to soar at a higher level. Why you need to keep on fighting all your lives, right? You should have that time with you, have that bandwidth with you, think big. So Singapore gives you that platform. It gives you environment to prosper, because you're not worried about day-to-day hassles of life. You have world-class infrastructure. Correct. Government policies to take care of you. Schooling is world-class. So as long as you are ready to follow rules here, you can do whatever you want to do here. So this company where you are working is a Singapore local company or another country company? No. So they are based out of... So this company where I work for is Singapore headquartered company. Okay. The promoters are Indian, but they have been out of India for last, say, 50 years, or 40, 50 years. They are based out of Singapore. They are based out of Singapore. Head office here. Okay, fair enough.
But we have a lot of back offices back in India. ओके, तो देखो आपकी बात करके इतना तो समझ लगेगा कि सिंगापुर इज ए वेरी गुड कंट्री टू स्टे. मतलब यू कैन लिव योर लाइफ इन मच बेटर वे. आपको अपॉर्चुनिटी या आपके फैमिली को अपॉर्चुनिटी मच बेटर मिलेंगी एंड यू गेट ए प्लेटफॉर्म टू ग्रो, करेक्ट, विदाउट competing with lots of people. You are competing against the world. You're competing against the best of technology which is there in the world. Singapore is a country also, if you see, runs like a corporate. I was talking to, Jagriti also on this, that, it runs like a corporate. It runs like a corporate. It sees the trend. It predicts the trend. It's a very proactive country that. It's not that you are living a very easy life here. They make sure that you are a step ahead of the game. So they give you the environment to think that you need to be a step ahead of the game. See, आप देखो इंडिया में क्या है. इंडिया में रिसोर्स, अपॉर्चुनिटीज है, ग्रोथ है, पॉपुलेशन है, एक इनहेरेंट ग्रोथ है उसके अंदर. कंट्री में यंग पॉपुलेशन है. हाँ, गवर्नमेंट कुछ भी नहीं कर रही है, लेकिन कंट्री जबरदस्त ग्रो कर रही है. बिकॉज आपके पास वहां पर ना सारे नक्षत्र इतना आ गए, वैसा है. Young population है, people want to grow there. You have a lot of opportunities there. Singapore is a small country. If they don't take proactive steps, एक कब 10 से गायब हो जाएगी पता ही नहीं लगेगा. अब किसी को फर्क नहीं पड़ेगा. अब देखिए 5.5 मिलियन पॉपुलेशन की कंट्री है. It punches way off its weight. Correct. So this country forces you to think 2-3 steps ahead of time. सर्वाइव नहीं कर पाओगे आप. तो आपको ऐसा कोई फील तो नहीं होता यार, इंडिया मतलब एक अपना सा फील, और सिंगापुर कहीं ना कहीं काफी कंट्री के लोग और ये चाइनीज भी हैं, मिक्स, यू आर गेटिंग मिक्स मैच. तो कुछ डिफरेंशिएशन, पीपल डू एनी डिफरेंशिएशन, और यू थिंक दैट देयर इज अ डिफरेंशिएशन? मतलब एक फील होता है ना यार, मैं अपने घर पे हूँ. देखो यार, सीधी सी बात है, आई एम बॉर्न बॉट अप इन इंडिया. ओके, फॉर मी माय पेरेंट्स आर देयर, माय एक्सटेंडेड फैमिली आर देयर. So I keep on visiting 3 to 4 times in a year to Which Singapore gives you luxury because 3-3.5 घंटे में आप इंडिया पहुंच जाते हो. ठीक है. My parents were in Calcutta, I was in Bombay. I should take 2 hour 40 minutes flight. Correct. Here I'm taking 3.5 hour flight. तो मतलब मोटा सेम बात है. Considering that इंडिया में आपको 2 घंटा पहले एयरपोर्ट पहुंचना पड़ता है, यहाँ हाफ एन आवर पहले पहुंच चल जाएगा. अच्छा है. हाँ, यहाँ पे ऐसा नहीं है कि मैं आपको नहीं 2 घंटे जरूरत नहीं है, बट हाफ एन आवर 45 मिनट में हमने काफी बार प्लेन पकड़ी है. अच्छा. सो आई मीन इफ यू, चलो मेरे को बता दिया आपने, मैंने कल ही फ्लाइट पकड़ा थी. डिपेंड करता है कौन से फ्लाइट में जा रहे हो. बाय इंडिया. हाँ, देन आप 1 घंटा पहले पहुंच रहे हो, चलेगा, नो प्रॉब्लम. सो सिंगापुर का इंफ्रास्ट्रक्चर दैट वे इज ग्रेट. कोई चेकिंग नहीं, आप एयरपोर्ट में घुस रहे हो, कोई आदमी लेके खड़ा नहीं है चेक करते हुए. इट्स ऑटोमेटिक, एवरीथिंग ऑटोमेटेड है. इनफैक्ट अपने यहाँ पासपोर्ट देखते नहीं है, यू जस्ट वॉक इन, दे सी योर फेस एंड जस्ट एंटर. Yeah, I think that immigration में, correct. When we came from Kuala Lumpur, Malaysia, तो वहाँ पे it's like scanning of your passport and then they read your face and it's an automatic digital system. हम लोग जो रेसिडेंट है यहाँ के, हमें जो स्कैन पासपोर्ट करना पड़ता है. हमें तो ये लगा यार स्टैम्प ही नहीं लगाई सिंगापुर वालों ने. सिंगापुर की स्टैम्प ही नहीं लगी. हाँ, करेक्ट. It was automatic. कोई जरूरत ही नहीं थी किसी से इंटरेक्ट करने की टाइप. So they have automated a lot of these things because यहाँ population नहीं है. That's why they need to be ahead of the game. So जितना AI adoption यहाँ मिलेगा आपको in every aspect of life, वो आपको बाकी कंट्री में इतना जल्दी नहीं मिलेगा. Correct. So like आज just to complete that, so in the morning I was attending a pre-budget meeting where the ministers were there and all. Their biggest grouse was that we missed the LLM trend. अपना language models जिसपे अपना ChatGPT and all. So उनका था कि we missed that trend. Why Singapore was not able to invent that or was a first mover in that? But they took a resolve कि कोई बात नहीं, we missed that. But we'll make sure the way we adapt is the best in the world. ये आज सुबह की बात है. So that's the way they think. That's the way they think. And that's the top management, top government officials of the country. Yeah, that's really good. Because उनके लिए बड़ा clear है, वो नहीं करेंगे तो दर्शे साफ हो जाएगा. नहीं, because as of now, see, I would say कि the growth and the improvement and how the government is working, like, it's outstanding. कि अगर आप इंडिया की ग्रोथ देखो तो हर तरफ से गवर्नमेंट इज ऑल्सो फोकसिंग that way. So I would say कि सिंगापुर is a
much from that angle, living standard or quality of air quality specifically is much better. इसलिए आप दिल्ली से आए हो. हाँ, तो दिल्ली से आए तो हमें एयर क्वालिटी ऐसा लग रहा है कि वो सांस मिलने के लिए इतनी बड़ी जगह मिल गई कि एवरीवेयर वी कैन ब्रीथ वेल. आई वाज गोइंग थ्रू योर प्रोफाइल, सो आई हैव सीन कि देखो, एक तो है कि हम इंडिया में ग्रो करते हैं तो इट्स लाइक आवर ओन कंट्री, फैमिली लाइक स्टफ इन इंडिया, जहां मर्जी चले जाएं हम. बट यू हैव ग्रोन आउटसाइड ऑफ इंडिया. आपने पूरा, नाउ यू आर हेडिंग ए रोल एज ए डिप्टी सीएफओ. सो आई वुड लाइक टू अंडरस्टैंड कि भाई ये जर्नी, हाउ डिफिकल्ट इट वाज, और हाउ इजी इट वाज, और हाउ यू डिड इट, सो दैट फॉर अ मास ऑडियंस दे कैन आल्सो टेक दैट स्टेप्स दैट व्हाट डन because of which you have achieved it. सी सबसे इम्पोर्टेंट बात, जब आप बाहर काम करने आते हो ना, इनिशियली एटलीस्ट 1 साल लेना, आप कल्चर समझिए कि आप दूसरे कंट्री में जाके उस कंट्री के बाशिंदों के साथ काम कर रहे हैं. यू हैव टू फर्स्ट अंडरस्टैंड हाउ दोज पीपल वर्क, व्हाट इज देयर माइंडसेट, because there are many things which we take for granted when we are talking among ourselves, right? Correct. We think it's normal, but probably उनके कल्चर में नॉर्मल नहीं है वो. So कभी कभी अर्थ का अंदाज बोलते हैं ना अपने, इट्स वेरी इजी टू हैपन. अगर आप फोकस नहीं हो, आप केयरफुल नहीं हो कल्चर को, एंड पीपल आर सेंसिटिव. Correct. अल्टीमेटली आप आदमियों से काम कर रहे हो. So that is one thing I would definitely like to tell anyone who wants to come out and work. Please understand that local culture first. Don't try to stamp your authority straight away. That boss, मैं तो इंडिया से आया हूँ, I know everything. I am part of the fastest growing large economy, and I have competed so much there, and I have achieved so much. I tell you how to do. Don't do that. आप आइए, इनके साथ रहिए, इनको कंफर्ट दिलवाइए. Let them understand that you are part of that. Okay. See, one thing nobody can take you from being an Indian who has worked sometime in India and then come out is your adaptability, your survivability, your basic level of intelligence. Correct. Okay, your street smartness. These are very inherent to us. Correct. We fought against 1.5 billion population, and that too from our childhood. Correct. So वो आपसे कोई नहीं सकता. But don't try to stamp that on the locals here as soon as you reach here. Don't do that. पहले उसको समझो, उनका पार्ट बनो. क्योंकि क्या होता है, अगर उन्हें अपने दिल के दरवाजे बंद कर दिए तो फिर आप सर फोड़ते रह जाओ यार, कुछ नहीं कर पाओगे. So let them open the door for you. You enter that door, and then people, once they think that you're part of them, they don't differentiate much between your outsiders here. But you have to take that extra step. So adaptability, you have there. You have to understand their culture, respect that culture. Fair enough. This is very very valid point and logical point. कि सीधा कहीं ना कहीं इंडियंस को होता है कि आई नो, मतलब नॉलेज, वी हैव नॉलेज, देयर इज नो डाउट, We are the knowledge source. तो हमें कहीं गलत कुछ दिखता है तो हमें लगता है यार तू गलत कर रहा है, रुक बताता हूँ. हाँ, तो वो कहीं ना कहीं वो आप जब इंडिया में रहते हो ना, तो आप बोल सकते हो. हाँ, बोल सके आप और मैं एक ही कल्चर हैं, एक मेंटलिटी समझ में आती है. हाँ, बट आई अंडरस्टैंड कि यहाँ के लोग उसको कैसे रिएक्ट करेंगे. एंड स्पेशली आप जब इस साइड ऑफ वर्ल्ड आ रहे हो, एशिया, फार ईस्ट, जापान, कोरियन, ये सब कल्चर में आते हो ना. सिंगापुर वो बहुत मिलेंगे, वो जापानीज, कोरियन कल्चर बहुत मिलेंगे. इस चाइनीज, इस कल्चर में ना, पीपल विल नॉट ओपनली से इन योर माउथ की शट अप, डोंट से लाइक दैट. दे विल जस्ट मेंटली इन देयर माइंड क्लोज द डोर फॉर यू. ओके. इससे आप ये स्टंट ट्राई करो यूरोप में या यूएस में, ऑल दोस कंट्रीज, दे विल स्ट्रेट अवे टेल यू टू शट अप. ओके. सो वो कल्चर है, they are very direct you. आपने कुछ बोला है कि I tell you what to do, they will say FO. आप नहीं बोल सकते उनको, क्योंकि उस देयर कंट्री. बट उसके में क्या होता है, आपस में गर्मा गर्मी हुई, शाम को बियर पिया, नेक्स्ट डे फिर से वही जादू. करेक्ट. एशिया कल्चर में स्पेशली दीज कंट्रीज, वो आपको मुंह पर कुछ नहीं बोलेंगे, बट दे विल जस्ट क्लोज द डोर फॉर यू. फिर आप कितना ही कर लो,
you're out of their lives. So this one mantra, I'm sure that you have used this mantra, and then that actually helped you. Yeah. Or is there anything which you want to share? कि भाई these are the tips. No, so Which you tips have- कुछ होता नहीं है. I don't believe in tips and all. Reason being, हर की अपनी अलग जर्नी होती है. वो आपको जर्नी नहीं पड़ती है. एंड यू सबसे इम्पोर्टेंट है, बी रेडी टू स्ट्रेच योर सेल्फ, बी एडेबल. सो मैं जहाँ लैंड किया वहाँ पर so my team was mix of Indonesians, Malaysians, Singaporean, Chinese. Mainland China वाले अलग होते हैं, Singapore Chinese अलग होते हैं. That's it. Okay, so I had Myanmaris. So it's a huge mix of different culture. So probably I had to adapt differently. इसलिए बहुत जरूरी है कि what I had to do, what I did, आपको ही करना नहीं. आप जहाँ लैंड कर रहे हो, that's why I said कि पहले कुछ महीने, 6 महीने, 7 महीने, 8 महीने, depending on how fast you can pick up, don't try to show your stamp of authority. आप कोई भी कल्चर में जाइए दुनिया में, you have to first learn that culture. Correct. जिस दिन आपको हो गया ना आपका, then you're part of locals. इसके बाद देखो बाकी तो क्या अपने इनसे प्रोफेशनल्स है. We have to keep upgrading ourselves with the local laws, regulation. वो तो देखो part of job होती है, right? You have to keep on upgrading yourself with new technologies. वो आप बाय नेचर करो. by nature करोगे. But जब आपने बोला कि the first most important thing which you need to do when you come out is respect the culture, adapt. नहीं, fair enough. And what do you think that आपने, I'm sure that जब आप इंडिया में जॉब कर रहे थे उसके बाद आपने you must have applied to some companies here. आपने you must have think through कि मेरे को सिंगापुर के लिए जाना है या प्लान करना है. Let me spend some time in Singapore. So वो उस जर्नी में आपको क्या हेल्प करा और कैसे आपने करा? If you can just throw some insight. Okay, mine thing was very, very different and probably not so common you will find. So, okay. What happened was, because I was working with Diageo, it was a global role. So I used to interact with a lot of people here in Singapore Okay. and UK and across the world. More of a global role that time. So I had a fair bit of idea what Singapore is all about. I had an opportunity to stay back for longer there. Probably would have done internal transfer. That's a different way of settling because then you're coming in the same culture, right? Same industry, same culture, you know people around, it's much easier to settle. Correct. What happened with me was, it is a totally different industry than what I was working with. They somehow got my resume and they had called me that we have a role in Singapore. Would you like to join us? Okay. So that's why मैंने स्टार्टिंग में बोला कि मेरी वाइफ को बोला था कि देखो इट्स अ टोटली न्यू वर्ल्ड. आई डोंट नो एवरी देयर. आई मीन नॉट इन अ सेंस लाइक इस कंपनी को जानता नहीं. टोटली डिफरेंट इंडस्ट्री. चल हनीमून बना के आते 1 साल का. सो देयर वाज नथिंग इन माय माइंड दैट कि आई स्टे इन दिस कंपनी फॉर सो लॉन्ग. बट जब आई यू सेटल इट एंड दैट टाइम यहाँ पर ना काफी ग्रोथ चल रहा था. दे वर सेटिंग अप लॉट ऑफ न्यू वर्टिकल एंड दे हैड पुट मी ऑन दोस वर्टिकल्स एट द टाइम टू रन इट. यू नो जब कुछ नया करते हो ना आप तो आपको मजा आता है. मतलब एक स्टार्टिंग में होता है कि दैट एक मिलती है जो बोलते हैं एक के बाद होता रहा. एंड देन एज आई सेड कि हम इंडियंस कहीं जाके परफॉर्म कर सकते हैं. ऑलरेडी बहुत अलग जगह के आते हैं हिंदुस्तान से. सीए जो करी है सबसे पहले तो वही बहुत बड़ी एफर्ट है. करेक्ट. सीए कुछ पढ़ाए ना, आपको डिसिप्लिन दिखा, परसिवरेंस सिखाता है, एफर्ट करना सिखा देता है. हार्डवर्क क्या करते हैं वो हार्ड वर्क करते हैं. जब परसिवरेंस होता है ना, एक बार फेल हो रहे, 2 बार फेल हो रहे, 3 बार फेल हो रहे, 4 बार लगे रहते हो. वो सिर्फ सीए सिखा सकता है. करेक्ट है. आप सुबह शाम तक जा रहे हो, अपने आर्टिकलशिप में जा रहे हो, 50 क्लाइंट से जा रहे हो, 50 लोग 50 बातें बोलते हैं. अब उसमें ध्यान रखिए, आप उससे बहुत यंग रहते हैं. मैंने आर्टिकलशिप चालू की थी 19 साल की उम्र में. अच्छा. तो 21 साल में तो सीए बन चुका था. अच्छा. वेरी नाइस. तो हम लोग तो उस मतलब बचपन में आप इतना सुन लेते हो लोगों से तो आपको एकदम एक्सपीरियंस हो जाता है. नहीं, फेयर इनफ. हम इंडियंस का और बीइंग अ चार्टर्ड अकाउंटेंट उस जर्नी को देख के तो वी नो दैट. सो आई इफ समबडी आस्क मी ना, मैं हमेशा लोगों को बोलता हूँ कि एक काम करिए, आपकी प्रैक्टिस चालू करनी है, प्लीज स्टार्ट द प्रैक्टिस. बिकॉज उसमें जब बाहर बिजनेस ले जाओगे ना, आप इतने लोगों से गाली सुनोगे, आप सीख जाओगे बिजनेस करना. और एल्स एटलीस्ट कुछ सालों के लिए घर छोड़ दो अपना.
go and work in some other city, away from your parents. Come out of the nest. 3-4 साल कंफर्ट जोन से बाहर आओ. कंफर्ट से बाहर आओ, हाँ. बाहर काम करो. हम्म. जब आपको पता है ना आजू बाजू कोई सपोर्ट करने वाला नहीं है आपको, सुबह शाम तक मारता है घर में, शाम को आओगे आप तो ऑटोमेटिकली डेफिनेटली फेयर इनफ हम सब लोग घर से बाहर निकल के कुछ कर पाए हैं नहीं. वो बोलते हैं जब तक पंछी घोंसला नहीं छोड़ता है ना, हाँ. उड़ना नहीं सीखता. उड़ना नहीं सीखता. करेक्ट. तो आपको घोंसला छोड़ना ही पड़ेगा. So that's the second tip you have given. So I would say what suggestion we can give to our mass audience or people जो अभी स्टूडेंट हैं या ग्रेजुएट हैं या इसी जर्नी को स्टार्ट करने वाले हैं. So it will help for them कि So इंडिया में अभी काफी अपॉर्चुनिटीज है. Try to get into roles which will excite you, especially स्टूडेंट के लिए, क्योंकि ना आपको हमेशा फैंसी रोल्स अच्छे लगते हैं. हम सब उस उम्र से गुजर चुके हैं. करेक्ट. जब मैं निकला तो उस समय क्या इक्विटी एनालिस्ट ही वर्ड आया हुआ था. हाँ. मैं नवंबर 2004 का बैच हूँ. आई थी इन्वेस्टमेंट बैंकिंग से बड़े बड़े वर्ड होते थे. इट इज एक्साइट लॉट ऑफ अस, बट नॉट एवरीबॉडी गेट दोस रोल्स, राइट? इनफैक्ट इक्विटी एनालिसिस तो मैं देख के आया था एंड आई केम बैक टू माय ओरिजिनल कॉर्पोरेट रोल. पर वो डिपेंड करता है आपका इंटरेस्ट साइड है. सो व्हाट आई एम सेइंग इज गेट एक्साइटेड विद फैंसी वर्ड. वो ट्रेंड के साथ चलने की जगह जो आपको लॉन्ग टर्म क्या करना है वो देखिए आप. हाँ. तो आपके केस में मतलब इट मींस एक्चुअली अपॉर्चुनिटी अपने आप आपके डोर पे नॉक करा और यू गॉट दैट अपॉर्चुनिटी बाय द रोल यू वर प्लेइंग. Yes, so basically जब मैं डियाजो में था आई शुड डबल रोल्स दैट टाइम आल्सो, बिकॉज बैचलर था, घर से बाहर था, 2-3 रोल साथ में कर लेता था मैं वहाँ पर, टाइम स्पेंड करता ऑफिस में. सो ये रोल तो ऐसे आया था कि कुछ मेरी सीवी में ऑलरेडी काफी सारे डिफरेंट कंट्रीज का कंट्रीज के रोल्स आ चुके थे, प्लस डिफरेंट फ्लेवर्स था. आई डिड लॉट ऑफ अदर वर्क. आई डिड स्टार्टेड विद इंटरनल ऑडिट, देन डिड कमर्शियल फाइनेंस, देन एक डिसीजन सपोर्ट होता था रोल्स में जो मार्केटिंग को सपोर्ट कर रहा था. देन आई डिड रीजनल फाइनेंस, मैंने एसएपी इंप्लीमेंट किया था. आई डिड लॉट ऑफ रोल्स. तो मैं आई एम श्योर दैट डिप्टी सीएफओ तक पहुंचते आपने सब कुछ देख लिया था. सो आइडिया इज आप एक जगह टाइप पास मत होइए. एक तो होता है कि आप अपने को स्ट्रेच करना है, आप सिटी छोड़ के जा रहे हो, सेक्टर चेंज कर रहे हो. अगर आप उसी कंपनी में भी हो, प्लीज चेंज ये रोल्स. एक रोल को 3 साल से ज्यादा करोगे आप ना अपने को कुछ वैल्यू एड करोगे ना कंपनी को वैल्यू एड करोगे. कितना नया माइंड नहीं सोच पाओगे, नए थॉट. 3 साल से 4 साल इज मैक्सिमम. कि आप क्या मतलब अगर उस 3 साल में भी अगर आपने उस रोल को अपने अंदर पूरा घोट नहीं लिया तो फिर मतलब रोल को जस्टिस नहीं किया है, और एक आपने अपने घोट लिया है, देन बाकी कुछ बचता नहीं फिर करने को. यू शुड चेंज. एनीवेज आई थिंक जो अगर आपको सीएफओ या डिप्टी सीएफओ लेवल पे यू शुड नो एवरीथिंग. आपको कंप्लायंस भी आना चाहिए, आपको ऑडिट भी आना चाहिए, आपको बिजनेस फाइनेंस भी आना चाहिए. करेक्ट. अभी मुझे कोई पूछता ना कि ये टेक्निकल वो टेक्निकल, मैं बॉस ये तो मैं करके आ चुका हूँ. तो अब जब आप सीनियर बन जाते हो ना तो आप टेक्निकल से थोड़ा ऊपर जाते हो. अब आप क्या होते हो, आप वो सिम्फनी मास्टर बन जाते हो, राइट? अब 4-5 10-15 डिपार्टमेंट्स है. फ्लूट कोई और बजा रहा है, ड्रम कोई और बजा रहा है, पियानो कोई और बजा रहा है. आपका काम है सबको एक साथ सिमुलेट मिल रहा है कि मेक श्योर द परफॉर्मेंस इन सिम्फनी. नहीं यू आर राइट कि आपको सब कुछ पता होगा तभी आप बैठ के कर पाओगे. अगर आपको पता होगा कि पियानो कैसे बजाना है तभी तो मैं उसको तो सही कर रहा है कि गलत. एंड दूसरा ना समटाइम्स आई फाइंड स्पेशली यंगस्टर्स दे थिंक कि हमें टेक्निकल से बनाना चाहिए. बट आजकल जमाना कंसल्टेंट्स का आ चुका है, राइट? आप की कोशिश कर लो, यू विल नेवर बी अ मास्टर फॉर एवरीथिंग. करेक्ट. आप एक चीज से मास्टर बन सकते हो, बट व्हेन यू ग्रो इन द लैडर ना यू नीड टू लर्न लॉट ऑफ अदर स्टफ. सो अगर आप हर एक को मास्टरिंग करने जाओगे ना तो आप एक लेवल अटक जाओगे. इफ टू ग्रो अप लर्न टू टेक अ स्टेप बैक. आपको एग्जीक्यूट नहीं करना है, आप देखिए लोग कैसे एग्जीक्यूट कर रहे हैं. जब तक आप मैक्रो लेवल व्यू नहीं लोगे ना, आउटसाइड इनसाइड बोलते हैं, जब तक आप खुद हाथ से करते रहोगे ना आप चीजें तब तक है ना आपके समय निकलता नहीं है. करेक्ट. तो सीख क्या हो रहा है. अगर मैं कोई चीज लिख रहा हूँ या कुछ कर रहा हूँ ना, मैं गलती ढूंढ नहीं पाऊंगा उसके अंदर. अगर मैं ढूंढ लेता हूँ गलती करता ही नहीं ना. करेक्ट. आई विल नेवर बी एबल टू परफेक्ट दैट थिंग. तो जैसे आप ग्रो करते जाते हो ना
Think less of technical stuff. Start thinking more of softer skills. How to manage people, how to talk to people, how to talk to different departments. वो भी एक अलग skill है. The way you talk to your team is very different than you talk to your other teams, Correct. Other department. other departments. Learn those skills now. So people management is much more important. वही होता है एक्चुअली बाद में. एक तो आपको बिजनेस समझ में आना चाहिए. स्टार्ट टेकिंग लॉट ऑफ बिजनेस कॉल्स. सेकंड, पीपल मैनेजमेंट. और कुछ नहीं है. ग्रो करने के लिए दो ही चीज चाहिए होती है. Correct. But of course, you have to do a lot of different roles to get into that position. But not necessarily अगर आप एक रोल में आपने you are a star performer, वो स्किल लेके आप आगे नहीं बढ़ सकते हो. क्योंकि यहाँ जो स्किल्स बहुत डिफरेंट है. बहुत डिफरेंट स्किल्स है. बट अगर आपने ये ठीक से किया है ना, तो इस लेवल पर आके ना यू आर एबल टू टेक दैट मैक्रो व्यू. करेक्ट. अगर मेरे को पड़ता है आई नीड टू ओनली ओवरव्यू इट, रिव्यू इट कि भाई जो बंदा कर रहा है वो सही एंगल पे कर रहा है नहीं कर रहा है. उस लेवल पर ना आपको बस 15-20 डिफरेंट डिपार्टमेंट करेक्ट. डिफरेंट रोल्स चल रहे हैं आपके. एक एपी वाला भी कुछ पूछ रहा है, एक बैंकिंग वाला भी कुछ पूछ रहा है आपसे, एक अपना अकाउंट कुछ पूछ रहे हैं, कॉर्पोरेट वाले कुछ पूछ रहे हैं. आप वो सब करते नहीं बैठोगे आप. करेक्ट. के पास आदमी के टाइम उतना नहीं होता है. नहीं है तो वही 24 घंटे. 8-10 घंटे सोओगे. फैमिली भी होती है, उनको भी टाइम देना है. देखिए आप लोग बोलते हैं मैंने ऑफिस में 8 घंटे बिताया, 10 घंटे बिताया, बट जो काम करते हैं ना 3 से 4 घंटे होते हैं. इफेक्टिव आवर्स कितने? इफेक्टिव मतलब 3 से 4 घंटे या मैक्सिमम 5 से 6 घंटे समझ लो आप. बाकी टाइम फिल ही करते रहते हैं आप चीजों को. नहीं, यू आर राइट कि पीपल मैनेजमेंट इज मच मोर इम्पोर्टेंट व्हेन यू ग्रो इन द लेन एक्चुअली. व्हाट डू यू थिंक दैट कि जो किसी को सिंगापुर में अगर जॉब करनी है, देयर आर 2 ways. वन आई कैन डू जॉब और वन आई कैन सेट अप एनी बिजनेस इन सिंगापुर. So jobs के लिए how easy it is to get a job in Singapore? You know, are there any vacancies which are available, say in XYZ, like in India there is a Naukri.com. There are so many other portals where you get to know, or LinkedIn as of now. So is there anything, you know, in Singapore also where we can apply or? Okay. So see, देखिए, I assume कि आप already mid management में पहुंच चुके हुए. You are looking at here, right? Over the last 3-4 years, Singapore has become a very tough market to crack. Okay. For jobs, because of the policies here which government is bringing. They are very choosy whom they want in Singapore now. Okay. So Singapore करने के लिए आपको employment passes issue करते हैं. As a corporate, अगर मुझे ईशान चाहिए इंडिया से, so I have to apply employment pass for. So basically, I'm sponsoring Ishan to be in Singapore. Correct. Okay. Now, for me to sponsor Ishant, यहाँ बड़ी complicated rule बना रखे हैं. Compass framework बोलते हैं. I have to justify why I have to take Ishant from India. Why can't I take Jerry or a Chris? Well, local from Singapore. I have to really justify that. Salary criteria काफी high बना रखी है इन्होंने. जब इंडिया से लेके आ रहा हो तो यू हैव टू पे देम एक्स्ट्रा टू जस्टिफाई दैट यस ही इज अ करेक्ट टैलेंट. यहाँ से लोकल लोगों को काफी प्रॉब्लम चैलेंज हो रही है. लेकिन मैं अपनी कंपनी में देखता हूँ हमें काफी चैलेंज हो रहा है. अर्ली हम हिंदुस्तान से ले आते थे, जैसे मैं भी हिंदुस्तान से आया था. सो इट वाज वेरी इजी फॉर माय कंपनी टू ब्रिंग मी दैट टाइम. करेक्ट. बट नाउ वी कांट. सो नाउ वी हैव टू लुक फॉर लोकल. सो आइडिया आफ्टर कोविड क्या था ना, काफी जॉब लॉस. दे रियली फोकस ऑन गेटिंग लोकल प्लेसमेंट फर्स्ट. So country thinks of their people first. Yes. And which is fine also. Which is fine also, but then you know, टैलेंट की थोड़ी प्रॉब्लम हो जाती है क्योंकि वो छोटे पुल है, पॉपुलेशन ग्रो नहीं कर रही है, देन यू आर स्ट्रगलिंग टू गेट द सेम. सो आते हैं सही स्किल सेट नहीं मिल पाता. स्किल सेट नहीं कहीं ना कहीं इंडिया का स्किल सेट आई थिंक यू नो. सो व्हाट हैव डन इज, सो अगेन मैंने एक्चुअली एक आर्टिकल लिखा था सीए जनरल के लिए, जैन में मेरा पब्लिश हुआ था ऑन आउटसोर्सिंग ओनली. आउटसोर्सिंग एंड जॉब अपॉर्चुनिटी इन सिंगापुर के रिलेटेड था. तो उसमें मैंने मेंशन किया था सिंगापुर अभी भी जॉब मिल सकता है, बट यू नीड टू हैव दैट सर्टेन स्किल सेट. सो अभी सिंगापुर में हवा चल रही है एआई की, मशीन लर्निंग की, बिकॉज दे आर डिजिटलाइजिंग लॉट ऑफ थिंग्स. करेक्ट. सो इफ यू हैव दैट स्किल सेट ना, इट्स इजी टू गेट जॉब हियर. बट आप वो जनरल रोल करके आ रहे हो, उसमें मुश्किल.
उसके अंदर भी पीपल कीप ऑन सेंडिंग मी ऑन लिंक्डइन कि सिंगापुर में जॉब करना है, क्या कर सकते हैं, ऑल दिस थिंग्स। आई ऑलवेज मैसेज देम बैक, देखो ये दो चीज कर सकते हो यार। एक तो ट्राई टू कम थ्रू बिग फोर, इनके पास भी कोटा रहता टू टेक पीपल फ्रॉम इंडिया, बिकॉज यहाँ क्या था रेशियो होता है, आपके जितने लोकल से तो इतना बाहर से ले सकते हो। करेक्ट वो है। इनके पास वो कोटा रहता है और इनको बहुत डिमांड रहती है। और जिस कंपनी में काम कर रहे हैं, देखो उसका अगर सिंगापुर में बेस है ना, इंटरनेट ट्रांसफर ले आओ, मच ईजियर। वंस अ ईयर देन एक्सप्लोर व्हाटएवर यू वांट टू एक्सप्लोर। फिर तो आप मतलब समुद्र आपका हो जाता है कि आप ढूंढ सकते हो, कैन फाइंड आउट कि अगर कुछ और है या नहीं है। करेक्ट, यू फेयर इनफ, अगर आप, क्योंकि आपके पास ऑलरेडी परमिट होता है, यस, एम्प्लॉयमेंट पास होता है। सो अगर आप सिंगापुर में आ गए थे, दूसरी कंपनी के लिए ईजियर टू ट्रांसफर दैट परमिट रादर देन टेकिंग एवरीबडी बैक फ्रॉम इंडिया, बिकॉज आप यहाँ पर ऑलरेडी हो, यू नो सिस्टम्स हियर, कल्चर हियर, ना कम स्पेंड करना पड़ता आपको उनको टाइम। अदरवाइज गेटिंग समबडी फ्रॉम इंडिया इज अ ह्यूज hassle for them at the moment. India में anywhere outside, it's a huge hassle for them. तो एक unknown quantity को लाने से बेटर है कोई यहाँ मिल रहा है तो उसी को ले लो टाइप्स। नहीं फेयर इनफ। नहीं, इट्स अबाउट जॉब। अगर मेरे को if I need to do any business, तो what opportunities Singapore provides, और के अभी ये भी it is limited to more to local? No, okay. Business wise, Singapore is open arms. में कंपनी सेटअप हो जाती है आपकी। सिंगापुर इज अ ट्रेडिंग हब, इट्स अ गेटवे, सिविक कंट्रीज का सारा पूरा गेटवे है सिंगापुर। नाउ व्हाई गवर्नमेंट से ओपन आर्म है, एज सून एज यू सेट अप अ कंपनी आपको लोकल हायर करने पड़ेंगे, तो यहाँ एम्प्लॉयमेंट जनरेट होती है उनके लिए। करेक्ट। जब बिजनेस करोगे तो आप कंट्री के लिए रेवेन्यू जनरेट करोगे, अगेन लोकल बेनिफिट है। सो ये ओपन आर्म्स है इनका। आप इनकी टैक्स पॉलिसी देख लो, इनकी कॉर्पोरेट लॉज देख लो, इनकी जो सिंगापुर इज अ आर्बिट्रेशन हब नाउ। सिंगापुर इज एज गुड एज लंडन नाउ। लंडन वाज द गोल्ड स्टैंडर्ड, सिंगापुर इज रीचिंग देयर। इतना आर्बिट्रेशन इन्होंने इजी कर दिया है। ओके, सिंगापुर इंस्टीट्यूट ऑफ आर्बिट्रेशन सेंटर इज वर्ल्ड क्लास नाउ। ओके, सो अब आर्बिट्रेशन देख लो, कोर्ट्स देख लो, यहाँ सुपर फास्ट रिजल्ट आते हैं। ऐसा नहीं कि केस हो गई आप 2 साल 3 साल लगे रहो ना, टाइम बाउंड होता है हर चीज। सो दे हैव क्रिएटेड दिस एटमॉस्फेयर फॉर बिजनेस टू कम एंड थ्राइव हियर। बट इज देयर एनी मिनिमम इन्वेस्टमेंट कि भाई मेरे को तो इतने इन्वेस्टमेंट करोगे देन वी यू नो फॉरेन नेशनल को भी ले लो, या ऐसा कुछ भी नहीं है? आई कैन ओपन अप सिंपली विद दिस स्मॉल शेयर कैपिटल। आप ईशांत हो, आप इधर आए, आपने यहाँ के लोकल कंपनी सेक्रेटरी बोला भाई मेरे नाम पर कंपनी खोल दे, 100% फॉरेन ओनरशिप पे कंपनी खुल जाएगी। खुल गई आपकी कंपनी। अब आपको अपने यू कैन बी वन ऑफ द डायरेक्टर्स ऑल्सो। ओनली रिक्वायरमेंट इज आइदर सेक्रेटरी और डायरेक्टर एक लोकल होना जरूरी है यहाँ पर। नॉमिनी डायरेक्टर और कॉप सेक, आई अंडरस्टैंड। एक लोकल होना चाहिए, लोकल होना चाहिए। एज लॉन्ग एज वो है, आप बिजनेस करिए, बिजनेस पे फोकस करिए। तो इसके साथ यू नो एम्प्लॉयमेंट पास लिंक्ड है कि मतलब आप अपनी कंपनी से खुद ही अप्लाई कर सकते हैं। हाँ। आपने एक लोकल ऑलरेडी हायर कर रखा है उसके अंदर, तो उसके नाम पर एक कोटा मिल जाता है आपको, आप हायर करिए अपने आप को, अपने नाम पर एम्प्लॉयमेंट पास यहाँ पर। मतलब आई थिंक वो भी अगर बिजनेस जनरेट हो रहा है तो सिंगापुर को कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। कोई प्रॉब्लम नहीं है, ओपन नाम से। आप देखिए यहाँ का टैक्स 17% है। उस पर भी अगर R&D में आपको अलग से बेनिफिट मिल जाता है। अगर R&D में आ रहे हो, रिसर्च एंड डेवलपमेंट में, फॉर एग्जांपल मैं शिपिंग सेक्टर से हूँ, आप यहाँ जहाज खरीद रहे हो, सिंगापुर फ्लैग रख रहे हो, आपको टैक्स पूरा जीरो है। अच्छा, यू टू पे टनेज टैक्स, जो एक शिपिंग का होता है टनेज टैक्स, वो दीजिए, आपको इनकॉर्पोरेट टैक्स जीरो है। ऐसे बहुत सारे डिफरेंट इंसेंटिव स्कीम्स है। वो बोल रहे हैं कि आप आके खाली जॉब मत करिए, आके यहाँ के एम्प्लॉयमेंट जनरेट करिए। जॉब भी करना है, देन कम विद अ ग्रेटर स्किल सेट्स। 2 साल पहले इन्होंने एक पास निकाला, 1 पास। अगर आप $30,000 से ज्यादा की सैलरी कमांड करते हो और इन दो हाई एंड स्किल सेट्स, यू कैन अप्लाई फॉर दैट पास। अच्छा, वेरी नाइस। 5 साल के लिए आपको पास मिल जाता है। अच्छा, तो यू कैन स्टे देयर फॉर 5 years. So, as I said,
अपॉर्चुनिटीज बहुत है, बट आपको लग रहा है वो जनरल स्किल सेट लेके आ जाओगे, तकलीफ है थोड़ा। फिर ना क्योंकि सिंगापुर का माइंडसेट इस पूरा कि मुझे आई एम रनिंग अ प्रॉफिट फॉर प्रॉफिट कंपनी, ठीक है ना। अल्टीमेटली वो बेनिफिट मिलना। They want to have that benefit for the locals here. Basically, Singapore is very clear. You bring employment here, you bring money here, my arms are open for you. You get the best of infrastructure here, best of corporate laws here, your taxation is world class, governance, you name it. They will put the red carpet for you. So you can't be as a freeloader आके नहीं रह सकते आप। तो आपके तौर पर से क्लियर होनी चाहिए कि अगर आप बिजनेस करना चाह रहे हो तो कुछ धंधा बना रहे हो, कुछ गवर्नमेंट को कुछ दे रहे हो एंड कुछ आप भी धंधा कर रहे हो, राइट, एंड सो यू ऑलवेज लुक कि बेनिफिट कहाँ हो रहा है। करेक्ट राइट। मैंने क्या बोला स्टार्टिंग में कि ये कंपनी, ये कंट्री नहीं, ये कंपनी है। So they are very clear what they want, but they want for a greater good. Okay? So ऐसा नहीं कि पैसे जमा कर रहे अपने पास रखते हैं, they will invest it back into the country itself. And you can see the structure here. टैक्स से कितना 17% टैक्स रेट है खाली, जीएसटी 9% है, आपकी इनकम टैक्स का हाईएस्ट लेवल 24%। करेक्ट, यहाँ कोई पहुंचता भी नहीं, वही मिलियन के प्लस होता है वो, वहां से भी 99% लोग पहुंचते नहीं है। इतना कम टैक्स कलेक्शन में भी the way they are managing this beautiful world is amazing. Correct. No doubt about that. I think it should be win-win situation for everyone. Yes. कि government को भी it is that you are generating employment or you are generating some business, and for you also you are generating business, you are anyways profitable. Yeah. And then you can stay here or enjoy whatever the Singapore as a country is providing. Yes, that's correct. Fair enough. Thank you so much, Nishan. It's wonderful talking to you. You have given a lot of insight for all for a mass audience, and in fact you've added a lot of knowledge to me also. So thank you so much. Let's we keep in touch with you whenever you come to India. We'll today we have done it in Singapore. Next we will then do it in Delhi somewhere. It will be my pleasure. Absolutely. Thank you so much, Nishan.